नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। इसमें हम लाते हैं उन खबरों को जिन पर दिन भर रहती है सबकी नज़र और उन पर बात करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। शुरुआत कर लेते हैं एजेंडा हेडलाइन के साथ। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी शुरू। राज्यसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण चर्चा शुरू करने के लिए प्रस्ताव करेंगे पेश। वहीं लोकसभा में चंद्र प्रकाश जोशी सदन में चर्चा का रखेंगे प्रस्ताव। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बैठकों का दौर जारी। चेन्नई में जारी भारत की G20 अध्यक्षता में शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन। गुवाहाटी में आज से G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई शुरुआत। जोधपुर में भी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का होगा आगाज। और अब आपको सीधे गुवाहाटी ले चलते हैं जहां पर सस्टेनेबल फाइनेंस पर एक प्रेस वार्ता हो रही है। Respected media friends, as you all know, India's presidency of G20 is a pride moment for all of us. Under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, this particular event is going to be organized across the country in more than 200 places in 59 cities, and so across the country. This is how Honorable Prime Minister have taken everybody along to organize this important global event. And this is how he has again given an opportunity for all the states to showcase their culture, heritage, tradition, and their hospitality and beauty. So this is, I believe, a golden opportunity for the people of India. And with that spirit, Guwahati is also hosting one of the event here. This is Sustainable Finance Working Group meeting, first Sustainable Finance Working Group meeting. And today I have taken a part in the inaugural session, and there I have welcomed all the dignitaries participating here and also virtually whoever have connected. And I believe you have also big responsibility to focus this particular event in a big way through your power of column and also through your power of visual media. So I believe, as you all know, here at Guwahati, the first Sustainable Finance Working Group meeting is just started, and in this particular event, mechanism for mobilization of timely and adequate resources for climate finance, enabling finance for the sustainable development goal, and capacity building of the ecosystem for financing towards sustainable development. So these are the agenda on which the discussion will be held for 2 days. And I believe we are very much hopeful that whatever the climate science has created a very, very difficult situation for the people of the globe. Definitely this particular group discussion will definitely find out the way out. And this is mainly entrusted the responsibility to identify the difficulties of sustainable finance for climate action and also for equitable growth, for well-being of the people of the globe.
So I believe this is a very noble initiative, and definitely in the near future, this particular group is also going to bring out the roadmap for how to mobilize the finance, sustainable finance. गुवाहाटी से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सबनंद सोनोवाल जिन्होंने बताया कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस की दृष्टि से ये जो बैठक होने वाली है ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। निचले सदन में चंद्र प्रकाश जोशी सदन चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण चर्चा शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। मंगलवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा गया। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। और संसद की आज होने वाली कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज जो चर्चा होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल रमा, जो संसद का बजट सत्र होता है वो पूरे साल भर तक जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें संचालित होती हैं उसका कहीं ना कहीं पूरा जो खाका है वो बजट के दौरान प्रस्तुत किया जाता है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो संचालित होती है। इसलिए बजट सत्र का जो ये पहला हिस्सा है भले ही छोटा हो लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जहां इस सत्र में होती है वहीं बजट पर भी चर्चा आरंभ कराने की कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा की जाती है। यह जो पहला हिस्सा है यह 13 फरवरी तक चलेगा और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा का जवाब जो है दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देंगे। आज से चर्चा आरंभ होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बिंदुओं को रेखांकित करने की कोशिश जो है वो की गई है उस पर सत्ता और विपक्ष दोनों जो है वो अपनी राय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहीं ना कहीं एक ऐसी परंपरा रही है रमा कि सत्ता और विपक्ष भले ही विरोध का स्वर जो है वो विपक्ष फूंकते रहे हों लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पारित कराए जाने की परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वहन जो है विपक्ष करता रहा है। हालांकि बीते कुछ एक वर्षों के दौरान देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जोरदार चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष के को विपक्ष के द्वारा जो है वो कई तरह के जो खूबियां और खामियां हैं उसका जिक्र विपक्ष के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसे आम सहमति से उसे पारित कराना, उसको सदन के पटल पर चर्चा के लिए चर्चा की शुरुआत आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तेलंगाना के लीडर हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे और पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा में उसका समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा में जो है वो भी वहां पर भी चर्चा होने की जो है आज दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो कार्यसूची है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो लिस्टेड है। इसलिए देखना होगा कि आज चर्चा की शुरुआत की उम्मीद की जाती है कि क्वेश्चन आवर के बाद जो है वो चर्चा आरंभ करा ली जाएगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है, संवैधानिक परिपाटी का तो हिस्सा है ही, इसके साथ ही सभी के जो सुझाव हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देश के विकास की एक जो दिशा तय की जाती है वो उसमें आम सहमति सबकी इसमें मिलती हुई दिखाई देती है।
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा रमा कि जो कई बार संसद के भीतर आप देखते हैं कि असहमतियों के बीच सहमति के रास्ते जो हैं वो तलाशे जाते हैं, और बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर एक दिखाई पड़ते हैं। बजट सत्र के दौरान जो बजट के कई प्रावधान हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा विरोध जताया जाता है, वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी राष्ट्रपति के द्वारा जो चीजें उल्लेखित की जाती हैं वो सरकार का पूरे साल भर का रोड मैप होता है कि सरकार ने क्या किया और आने वाले एक साल में सरकार क्या कुछ करने जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष के द्वारा विरोध करने की परंपरा रही है, लेकिन असहमति के बीच सहमति के रास्ते जो हैं वो तलाशे जाते हैं। लिहाजा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है उसको ध्वनिमत से पारित कराया जाता है, और बजट भी जो है बजट को भी सहमति के साथ पारित कराए जाने की परंपरा रही है, क्योंकि इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो संचालित होती है। और आपने कल देखा कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक महत्वाकांक्षी बजट जो है उसको प्रस्तुत किया, और कहीं ना कहीं देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की जो प्रतिबद्धता पिछले बजट में जो दिखाई गई थी उसको आगे बढ़ाने का संकल्प जो है उसको दोहराया गया है। और शायद यही वजह है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, हाईवेज, वाटरवेज और तमाम इन जो मूलभूत बुनियादी जो ढांचे हैं उसको मजबूत करने के लिए सरकार जो है वो कृत संकल्पित है, जिसका उल्लेख बजट में दिखाई पड़ा। और साथ ही भारतीय रेल के विकास के लिए भी 240,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खास तौर पर रेल के लिए जो है वो दिए गए हैं। और पहले हम सब लोग जानते हैं कि पहले रेल बजट जो है अलग से पेश किया जाता था, लेकिन एनडीए सरकार में जो 2014 के बाद की जो सरकार बनी उसमें जो है रेल बजट को आम बजट में ही समाहित कर दिया गया, और जिसकी वजह से अब उसके लिए आवंटन जो है अलग से देने के बजाय आम बजट में ही उसका प्रावधान किया जा रहा है। और वंदे भारत ट्रेन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अब वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की जो है वो संकल्पना इस बजट में दी गई है। जो 50, 60, 70 किलोमीटर तक जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं रमा, उन ट्रेनों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जो है, वंदे मेट्रो ट्रेन की परिकल्पना इस बजट में की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह संकल्प भी दोहराया है कि इस ट्रेन के जरिए स्थानीय स्तर पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी लग्जरी सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ऊंचे किराए के साथ जो एक खास वर्ग है वो सफर करता है, लेकिन वंदे मेट्रो ट्रेन जो होगी उसमें स्थानीय लोग सफर करेंगे और कॉमन पीपल को भी इसका एक बेहद उपहार मिलेगा। बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी आपने दी राजेश। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम विषयों को छूते हुए एक दूरदर्शी, समावेशी और मजबूत अर्थव्यवस्था का बजट सरकार इस तरह से बता रही है, इस पर चर्चा होनी है, और किस तरह से ये चर्चा होती है इसकी जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में आज से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय इस अहम बैठक में वैश्विक कौशल अंतराल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता सामंजस्य, सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन होगा। ILO, OECD और ISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति आयोग तथा MSDE, EPFO जैसे भारतीय संस्थान भी विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। G20 के सदस्य देशों को भी प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता धर्मेश भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो एजेंडा है वो काफी महत्वपूर्ण है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह का माहौल है, और किस तरह से आप बताना चाहेंगे इसका महत्व?
देखिए G20 के जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है उसकी आज पहली बैठक अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ ताज होटल के अंदर उसकी शुरुआत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लगभग 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 9 विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो डेलीगेट्स हैं, लगभग 70 से अधिक डेलीगेट्स हैं, वो जोधपुर पहुंच चुके हैं और जोधपुर के अंदर उनका बड़ा परंपरा से और जो राजस्थान का जो कल्चर है, पधारो हमारे देश, तो राजस्थान के पूरे कल्चर को शोकेस करते हुए उन सब डेलीगेट्स का यहाँ स्वागत किया गया है। और G20 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से जानते हैं कि ये पूरे के पूरे विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 3/4 और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2/3 जनसंख्या को G20 ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस एंगल से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आज का महत्वपूर्ण विषय है उसमें वैश्विक कौशल में जो अंतराल है उसके ऊपर पहले डेलीगेट्स की जो है आज बैठक होगी और उसके अलावा स्किल डिमांड और सप्लाई, जो लेबर की स्किल डिमांड और सप्लाई है और उसका स्किल एनहांसमेंट, ऐसे सब सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे डेलीगेट्स चर्चा करेंगे और एक जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, कैसे और स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। उसके अलावा अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर निकल कर आएगा। रमा, बिल्कुल धर्मेश, आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस गैप की बात हो रही है कि उस गैप को भरा जाएगा, वो गैप आखिर है क्या? किस तरह से, चाहे रोजगार की बात हो, कौशल की बात हो, स्किल की बात हो और अनुभव से उसके उपयोग की बात हो, ये जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं, नीति आयोग भी उसमें है, किस तरह की नीतियां बनाई जा सकती हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा सकता है? देखिए ये तो आप निश्चित मानिए कि जब विश्व स्तर के ऊपर इन सब विषयों के ऊपर चर्चा होगी तो जो देश अपने स्तर के ऊपर बेहतर कार्य कर रहे हैं या जो जिस क्षेत्र के अंदर बेहतर कार्य कर रहे हैं और जो गैप है वो किस लेवल पे गैप है, निश्चित रूप से उन सारे बिंदुओं के ऊपर यहाँ चर्चा होगी। और वो जब चर्चा होगी तो उसमें से जो बात निकल कर आई और एक दूसरे को किस प्रकार परस्पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे समूह का या इस पूरे जो बैठक है इसका उद्देश्य यही है कि हम आपस में एक दूसरे को किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे के जो स्किल लेबर है उसको हम किस प्रकार उसकी और स्किल को एनहांस कर सकते हैं, उनके जो अनुभव है उसको साझा कर सकते हैं। तो ये कई मायनों में कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 एक विश्व के बड़े भूभाग को रिप्रेजेंट करता है और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। रमा जी, धर्मेश आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में जारी G20 शिक्षा समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जहां आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर एक सत्र आयोजित होगा, तो वहीं एक अन्य सत्र में समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कल इस अहम बैठक के दौरान मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने में G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कुछ प्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि ये बैठक आगामी बैठकों की दिशा भी तय करेगी। और चेन्नई से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्यामा, आज अंतिम दिन है, अभी तक के सत्रों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये जो चर्चा हुई है, ये जो सत्र हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे अगर हम अनुभव साझा करने की बात करते हैं और उनसे कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं, जो तमाम चुनौतियां हैं और जो तमाम आगे संभावनाएं भी हैं उनके उपयोग करने को लेकर। जी रमा, देखिए ये पहली मीटिंग है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की और चेन्नई में हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं चेन्नई की तो बहुत वो महत्वपूर्ण जगह हो जाता है, क्योंकि IIT मद्रास यहाँ पर है और कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर हैं। 4 अहम मुद्दे हैं यहाँ पर जो ये पूरे G20 मेंबर कंट्रीज और जो इन्वाइटेड कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 जो डिस्कशंस हैं वो आज आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, जहाँ पर फ्यूचर ऑफ वर्क के तरीके से उस पर चर्चा की जाएगी, साथ ही रिसर्च एंड इनोवेशन
एजुकेशन, ये दोनों अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि डिजिटल मीन्स जो है उसके ऊपर में भी चर्चा हो चुकी है, किस तरीके से आप टेक एनेबल्ड लर्निंग कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। जब हमने डेलीगेट से बात किया है, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो एक स्वर में ये बात करते हैं कि ये जो मीटिंग है वो जाहिर सी बात है आगे आने वाले जो एजुकेशन मीटिंग्स होंगे, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, उसके लिए एक टोन सेट कर सकते हैं और इसके साथ ही एक दिशा बता सकती है कि किस तरीके से हर विश्व का हर बच्चा जो है वो मिनिमम एजुकेशन जो है, मिनिमम शिक्षा जो है वो पाए, ये इंश्योर करना वर्किंग ग्रुप की एक तरीके से एक यहाँ पर रणनीति होगी। जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, हम जानते हैं कि कोविड जिस तरीके से पैंडेमिक पूरे विश्व भर में छाया था और एजुकेशन इस समय में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। डिजिटलाइजेशन के मीन्स से एजुकेशन जो शिक्षा थी, आप टीचर्स की बात कर लीजिए, कॉलेजेस की बात कर लीजिए, ये शिक्षा जारी रही है और वो सिर्फ है डिजिटलाइजेशन के मीन से। तो ऐसे यहाँ पर टेक एनेबल किस तरीके से अब करा जा सकता है, हर बच्चा हम अमूमन देखते हैं कि भारत की बात कर लीजिए या बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर लीजिए, एक परिवार में आपके पास एक ही कोई टैबलेट होगा या एक ही फोन होगा जिसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में आप क्या तरीके निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप संशोधन इस पर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये तो डिलिब्रेशंस की बात हो गई है। कल्चरल साइड जब होता है, हर सिटी जहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वो अपने कल्चरल साइड्स, ट्रेडिशनल साइड ज़रूर दिखाते हैं। तो कल जो 2 अहम विश्व टॉपिक्स के ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद में जो डेलीगेट्स थे G20 के वो महाबलीपुरम विजिट करने गए। हम जानते हैं कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है और वहाँ पर वो जाके उन्होंने जाना कि किस तरीके से केव टेम्पल्स हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में जाना और साथ ही वहाँ के ट्रेडिशनल डांसेस या फोक डांसेस जो है उसमें भी उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं सहभाग लिया। उन्होंने भी डांस किया और साथ ही लुत्फ उठाया कि इंडिया जो हॉस्पिटैलिटी कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, वो एक तरीके से पूरा उन्होंने फ्लेवर लिया। आज हम बात कर रहे हैं, अंतिम दिन है, आप ऑलरेडी 2 पहलू बता चुकी हैं किस पर डिस्कशन हो रहा है। ओवरऑल बिल्कुल, कह सकते हैं आज कि का जो सत्र है 3 बजे के अराउंड में लगभग ये पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। जी श्यामा, उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो आज का सत्र है वो कितना महत्वपूर्ण है, आजीवन सीखने की क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अनवरत रखा जाए और इसका किस तरह से सकारात्मक प्रभाव और पहलू जो है वो सबके जीवन पर पड़ने वाला है। देखिए रमा, हम जब बात करते हैं पढ़ाई की तो आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि जब आप पढ़ाई करवा रहे हैं तो आगे जाके क्या उसका फ्यूचर है। तो फ्यूचर ऑफ वर्क एक काफ़ी अहम टॉपिक है यहाँ पर। किस तरीके से आप उस कंडीशन बना सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस बना सकते हैं, एनेबल किस तरीके से करेंगे, वो सब चीज़ों पर यहाँ पर पहलुओं पर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ शिक्षा बल्कि आप उसको इंश्योर करें कि अब उन्हें जॉब भी मिल रहा है। हर एक बच्चा जो शिक्षा ले रहा है, मिनिमम ग्रेजुएशन भी हो रहा है, 12वीं भी पास हो रहा है, तो उसके पास में एक जॉब होना चाहिए। ऐसे समय में एक भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि आप उन्हें स्किल्ड करें। यहाँ पर भारत के पास में काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेज है, टैलेंट है और साथ ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि भारत के पास में स्किल इंडिया स्कीम है, डिजिटल इंडिया की मीन्स की तरफ से उनके पास वो भी नॉलेज है। इसके अलावा हमने नई शिक्षा नीति को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो माना जा रहा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से शिक्षा सिस्टम जो है वो उसे बदल सकता है, उसे बेहतर बना सकता है हर बच्चे के लिए। जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है ना सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देगा, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है, जो अमूमन हम देखते हैं, हम बोलते हैं पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा खराब, लेकिन अब वो चीजें चेंज हो चुकी है और उसी तरीके से उसी दिशा में भारत काम कर रहा है। और ये सारी बातें भारत पूरे जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें बता सकता है, उनके साथ में ये चीजें एक्सचेंज कर सकता है और साथ ही जो मेंबर कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आए हैं वो भी अपनी नॉलेज, वो भी अपना ज्ञान यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। भारत उनसे भी सीख सकता है कि किस तरीके से हम अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं। रमा जी श्यामा, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।